This morning, I have an important word to share with all of you. Okay? And it is a little difficult word. Okay? So I hope that you people will not get angry on me. Okay? Because what is my job? To take the word from God and to give it to you. Okay? So when the postman comes to your house with the letter, you don't slap the postman, right? You just take the letter and you read it and you see from whom the letter is come and what the letter says, and then you have to decide whatever is written in the letter. Correct? So I am the postman. Okay? I want to deliver an important letter to you this morning. Hallelujah from God. Praise the Lord. तो प्रभु से आज एक इम्पोर्टेंट संदेश, मुख्य संदेश है जो मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूं। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपना ध्यान इस बोर्ड पर, इस स्क्रीन पर रखिए। बहुत बड़ी नंबर आ गई है। Everybody look at this screen. There's a very big number here. Yes? Who is a maths genius in the church? Who can read this? कौन इसे पढ़ सकता है? कितना है ये? कोई बोल सकता है कितना है? 10 million. Yes? 10 million. 10 million. Okay, brother Sunil is giving us 10 million. Anybody else? 10 lakhs. 10 lakhs. It's more than lakhs. You see the number of zeros? Yes? Okay, fine. I will not 1 million. exercise. Okay, whatever. 1 million, 10 million, whatever. I'll give you the answer. If you can just click. Yes. What it is? 100 billion. It's a very big number. 100 billion रुपए. 100 billion. Now imagine, I'm not talking about money, okay? I just said rupees, but no, I'm not talking about money. It's a very big number, okay? 100 billion. Now imagine, okay, just for one moment. Imagine, सोचिए आप, अगर प्रभु ने कहा कि आपको स्वर्ग में जाना है, तो इतने सारे अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे। सोचिए, प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहता है, अगर आपको स्वर्ग में एंट्री चाहिए ना, तो आपको इतने सारे अच्छे काम करने पड़ेंगे। Okay, imagine that. If God tells you, you need to do this 100 billion good works, okay? God is counting good deeds. Thank you, Sean, for helping me. So 100 billion good deeds you need to do. So if God says, if you have to enter into heaven, what is going to happen, church? क्या हो जाएगा? Can you keep a count of what you're doing? Is it possible? क्या हम गिन सकते हैं इस तरीके से? और अगर हम गिनना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि एक दिन जब खत्म हो जाएगा, you need to hold it. एक दिन जब खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मुझे लगता है हमारे गुनाह जो रहेंगे, सुनिए ध्यान से। एक साइड आप अपने गुनाहों का लिस्ट बनाओ, एक साइड आप अपने अच्छे कामों का लिस्ट बनाओ, अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक साइड जो गुनाहों का लिस्ट है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन अच्छे काम का लिस्ट थोड़ा कम रहेगा, है ना? तो फिर अगला दिन आपको एक चैलेंज हो जाएगा, अरे आज जो मैंने इतने कम अच्छे काम किए, कल मुझे क्या थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि आप टू मैच दिस नंबर, एक संघर्ष हो जाएगा जीवन में, करता है ये नंबर मुझे मैच करना है। जिंदगी खत्म हो रहा है, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, और एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 20 साल, आप गिन रहे हैं। आप शुरुआत के 2 जीरो भी आपके खत्म नहीं हुए, 50 साल के हो गए आप, वहां के 3-4 जीरो भी आपके खत्म नहीं हुए। कितने साल लग जाएंगे इतने सारे अच्छे काम करने में? हो पाएगा? Is it possible, church? Tell me. Is it possible? No. If you look at it this way, we will never make it to heaven.
हम कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते. But the good news is God is not a taskmaster. Hallelujah. जो अच्छी खबर यह है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे चाबुक लेकर काम नहीं करवाता है. हालेलुया. हमारे परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. हालेलुया. और इसलिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? चेंज. यस. वन मोर. यस. God in His mercy gave us free salvation on account of Christ. परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं लिया. परमेश्वर ने आपके पास मेरे पास कुछ नहीं लिया. God has not taken anything from us to give us such a costly gift of eternal salvation. Salvation is a free gift from God for those who believe on the Lord Jesus Christ. Because Jesus died on the cross. Just now we took partake from the Lord's table and to remember His cross. Yes, salvation we have received in God's mercy. So we don't have to keep account of all the good works we are doing. Okay, that is over. Now let's move ahead. Since Christ purchased our salvation, we owe our all to Him. Our giving to Him becomes filled with unlimited gratitude. Do you understand this? You had to, suppose, give God 100 billion. You had to give God 100 billion. Suppose. We owed it to God. हम सबको परमेश्वर को जो है इतनी रकम देनी थी, इतने अच्छे काम शायद देने थे जिससे हमारा उद्धार होता, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए. है क्या? हमारे पास इतने अच्छे काम नहीं है, इतने अच्छे गुण नहीं है, इतना अच्छा हमारा चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास. जब कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ दे नहीं सकते थे प्रभु को, हमारा नाश होना तय था. Because we couldn't give God anything. Because we couldn't give God anything. The righteousness that He demanded, it was just and fair for God to punish us. Yes? But God chose to forgive our debt because Jesus bore it on the cross. Hallelujah. I want to understand, church, the spiritual implication of what I'm telling you right now. कल से मैं चाहता हूं कि ये आत्मिक चीज जो यहाँ पे हो रहा है वो समझ लें. जब आपको इतना जो है उधार, इतनी जो है प्रभु को देना था, आपकी जो रकम है उद्धार का प्रभु को देना था, आप नहीं दे पाए. आपके अच्छे काम, आपकी पवित्रता आप नहीं दे पाए. प्रभु ने अनुग्रह से आपका उद्धार किया है. और तो जब प्रभु अनुग्रह से यीशु ने आपके बदले में सब कुछ खुदा को दे दिया है, अपने खून, अपना शरीर को तोड़कर यीशु ने आपकी जगह पर दे दिया है, तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली आप किसके सेवक बन जाते हैं? यीशु के सेवक बन जाते हैं. हालेलुया. Whatever you have, it automatically comes into the custody of Jesus. Are you understanding this? जो भी आपका है वो क्या हो जाता है? अपने आप से यीशु के अधीन हो जाता है. It is no longer ours to tell this is mine, this is mine, this is mine. Because our soul itself, which is on the way to destruction, was caught by Jesus and saved by Him, so that we automatically become the property of Jesus. Hallelujah. I want you all to understand this. Hallelujah. And when you are filled with this attitude, जब आपको ये आत्मिक रहस्य समझ में आ जाता है, आप जब प्रभु को देते हैं, when you give of yourself to Christ, when you're giving, it has a new meaning in it. हालेलुया. और जब इस चीज को समझ लेते हैं, और जब कभी प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप कुछ भी देते हैं, तो उसमें आप एक नए अर्थ से देते हैं. हालेलुया. Praise the Lord. And to this morning, I want to talk to each one of you about the right attitude of giving.
Dipti, could you change the slide? Yes. The right attitude of giving. When you are a Christian, when you are a born again child of God, जब आप मसीह है, नए जन्म पाए हुए परमेश्वर के संतान हैं, and when you come into the kingdom of God, we need to work according to the principles of the kingdom. जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं, तो प्रभु के राज्य में जो नियम प्रभु ने रखे हैं उसके अनुसार हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो प्रभु के राज्य में जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं कि क्योंकि यीशु ने मुझे मोल लेकर खरीदा है, बिकॉज आई हैव बीन परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, आई डू नॉट ओन माई सेल्फ। मैं अपने आप का नहीं हूं, आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु का हूं। हालेलुया। जो भी मेरा है यीशु का है। और ये समझ जब मुझे आ जाती है, जब मैं प्रभु को देता हूं ना, एक नई समझ मेरे अंदर आती है, एक नई खुशी मेरे अंदर आता है। और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो कौन सा सही तरीका है, वो कौन सा सही दृष्टिकोण या समझ है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को, अपने जो टैलेंट्स प्रभु ने आपको दिए हैं, गुण, अच्छे गुण जो प्रभु ने आपको दिए हैं, आपके समय को और आपके संपत्ति या धन को प्रभु के लिए कैसा दे सकते हैं, कौन सा समझ होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। देना जो होता है, दान देना जो होता है, देना सिर्फ दान या पैसा ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा समय, हमारा सब कुछ जो अभी किसका है, प्रभु का है। तो प्रभु को जब हम वापस उसको प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु का ही है, हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आभारी दिल से करते हैं। हालेलुया, आभारी दिल से करते हैं, with full of gratitude. Christian giving is birthed from gratitude. जब एक क्राइस्तव देता है, वो कहां से, उसके देने की जो शुरुआत होती है वो आभारी दिल से वो देता है। हालेलुया। And if you turn your Bibles to Matthew chapter 6 verse 2 to 4, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 2 और 3 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि देना कैसा होना चाहिए। How should our giving be? The Lord is talking here to the Jews. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यहूदियों से बात कर रहे हैं, पहाड़ी उपदेश में, Sermon on the Mount. And the Lord says here, He is drawing a contrast between a certain section of people who are very good givers. यहाँ पर जो है, and certain section of people whom He was teaching to give in the right way. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, दो झुंड के लोगों के बारे में बात करते हैं। एक झुंड के लोग जो थे, उनको देना अच्छा लगता था और वो देते भी थे, लगातार देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे। प्रभु के मंदिर में जाते थे और दान देते थे। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर और एक किसी झुंड के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके सामने जो लोग, साधारण लोग बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनके उदाहरण को लेकर, जो लगातार देते थे, उनके उदाहरण को लेकर इनको कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट, एक विभिन्नता है वहां पर, कि ये तो ये दे रहे हैं, इस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आपको कैसे देना है मैं बताता हूं। There is a contrast. And what does the Lord say? If we look into our Bibles, what does the Word of God tell us? The Lord says, be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by men. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
यहाँ पर एक ऐसा झुंड है जिनको वो एक कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रभु कहते हैं वो पाखंडी है। Lord says hypocrites. It's a very strong word, but if you look at the meaning of it, उसके अर्थ को आप समझे तो पाखंडी किसे कहते हैं? जो बाहर से कुछ करता है, अंदर से मन और कुछ है। अंदर के मन के विचार कुछ और है, बाहर से कुछ और तरीके से करते हैं। तो दुगने मन जो काम कर रहे हैं और जो सोच विपरीत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर मैं आपको कह दूं तो फरीसी लोग, जो सदूकी लोग उस जमाने में थे, उनकी जिक्र कर रहे हैं। The Lord is talking here about the religious people, the scribes, the Pharisees. Not all of them, some of them were good, but most of them, they had this attitude. The Lord says, प्रभु कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो देते हैं। देना उनको अच्छा लगता है, देते हैं, मंदिर में आते हैं, दान देते हैं, लेकिन देने के बाद क्या करते हैं? तुरही जो होता है, ट्रम्पेट, उसको फूंकते हैं। उसको फूंकते हैं ताकि लोगों को आवाज पहुंचे और लोग दौड़ कर आए और पूछे क्या हुआ, क्यों तुरही फूंका जा रहा है? Why is the trumpet being sounded? फिर वो कहेंगे मैंने देखो इतना दान दिया है। हालेलुया। ये कौन है? धर्मी, जो धर्म गुरु थे प्रभु यीशु के समय में। वो लोग तुरही फूंककर दे मेक इट पब्लिक, क्योंकि वे चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने कितना दान दिया। मतलब उससे दो चीजें होते हैं। ऐसे पता चलने के द्वारा उनका उद्देश्य दो रहता है। एक उनका उद्देश्य यह रहता है हमने इतना दान दिया क्योंकि हमारे पास इससे भी ज्यादा धन है और लोग जाने कि हम बहुत धनी हैं। उद्देश्य को समझिए, प्रभु यहां पे क्या कह रहे हैं। और दूसरा क्या है? जिसको उन्होंने दान दिया है वो व्यक्ति आर्थिक तौर पे नीचा है हमसे। ये किसका स्वभाव था मेरे भाई और बहनों? ये उन दिनों में धर्मगुरुओं का स्वभाव था। ऐसा वो करते थे। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसा वो करते थे। फास्ट फॉरवर्ड 2000 ईयर्स, फॉरवर्ड कीजिए अभी 2000 साल के बाद, अभी के समय में आजकल कितने सारे विश्वासी लोग सेवकाई के नाम पे पैसे लेते हैं, सेवकाई करते हैं, लेकिन उसके बाद फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ सब प्रचार होता है, हमने यहाँ इतना दान दिया, यहाँ इतना दान दिया। प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर? हमें क्या करना है? आगे पढ़िए, रीड इट, वर्स 3। But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Hallelujah. What a beautiful words. Will reward you. Hallelujah. God will reward. When? प्रभु प्रतिफल देंगे। प्रभु प्रतिफल देंगे जब आप प्रभु को देते हैं, चाहे कुछ भी हो। आज दान के बारे में बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने चेहरे के सामने पैसों को मत रखिए। जब दान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी नजरों के सामने आपका हृदय होना चाहिए, क्योंकि हृदय जब देंगे बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर हृदय को घर पर छोड़ के आएंगे, बाकी कोई चीज देकर भी कोई उसका मतलब बनने वाला तो नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यहां कहते हैं कि मैं आपसे एक नया तरीका बताता हूं। I'm going to tell you a new way of giving, a new wonderful way of giving, which is going to give you sure results, okay? प्रभु कहते हैं मैं आपको नया तरीका देता हूं जिससे आपको जो है जरूर प्रतिफल मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, जरूर अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और कहां से मिलेगा? मेरे पिता से मिलेगा। यीशु कहते हैं पक्का मिलेगा, 100%, राइट इट डाउन, 100% मिलेगा। इफ यू गिव इन दिस न्यू वे ऑफ गिविंग,
What is that new way? The Lord says, when you give, जब आप देते हैं, आपका जो दाया हाथ है, उसको पता न चले कि बाया हाथ क्या कर रहा है। या आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाया हाथ को पता न चले कि दाया हाथ ने क्या दिया है। उसका मतलब क्या है? आपको जो देना है वो कैसे आपको देना है? इस सोच से देना है कि जो प्रभु का है वही मैं प्रभु को दे रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है। Whatever is the Lord's, that I am giving to the Lord, and it does not belong to me in the first place. If there is a need in His kingdom, then I will be there to do what the Lord wants from me. अगर प्रभु के राज्य में कोई जरूरत है तो मेरा सब कुछ वहां पर मौजूद रहेगा प्रभु के राज्य के लिए. That is the attitude of Christian giving, my dear brothers and sisters. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आजकल जो है हम जो है एक न्यू ट्रेंड को हम लोग देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी में. We are witnessing a new trend. एक नया फैशन, एक नया ट्रेंड आ गया है क्रिश्चियनिटी में. आजकल जो लोग हैं ये भूल गए हैं कि हम प्रभु को क्यों देते हैं, क्योंकि सब हम देने से पहले यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है. So whenever the thought comes to your heart to give something to the kingdom of God, don't think that my treasury is so big, out of that I'm taking and giving. No. Think my heart of gratitude is so full. Out of gratitude for the cross, for the everyday blessings, for the everyday miracles, I'm giving to the kingdom of God. Hallelujah. What I told you earlier, I'm repeating it. Christian gratitude is birthed from gratitude. Christian giving is birthed from gratitude. Hallelujah. विश्वासी का जो देना होता है वो एक आभारी दिल से पैदा होता है. Hallelujah. So first, before you give, stop your giving first. You know what I mean? Hold it for a while. Before you give, look at your heart. Is it full of gratitude to the Lord? If yes, then give. If no, then don't give. Prepare your heart. Fill it with gratitude to the Lord. And let your heart be full of joy for what God has done for you in your life. पहले अपने हृदय को तैयार करो, याद करो मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या किया है. जब मैं निस्सहाय था, किस तरह प्रभु मुझे सहायता दिए है, कैसा प्रभु ने मुझे बचाया है, कैसा मैं अकेला था प्रभु मेरे साथ थे, मेरे पास कुछ नहीं था, आज जो भी है प्रभु ने दिया है. Hallelujah. Make this attitude first, then you give. And then I tell you a spiritual secret, church. The 3 beautiful words that came out of the mouth of Jesus will happen in your life. The Lord said, the Father who sees in secret will reward you. Hallelujah. जो पिता गुप्त में देखते हैं वो आपको जरूर प्रतिफल देंगे. Hallelujah. और प्रतिफल के बारे में जब बात करते हैं, आजकल मैं आपसे कह रहा था जो नया फैशन आ गया है, और इस फैशन में जो है देना तो होता है, लेकिन देना का जो मकसद है वो बदल चुका है. जो प्रतिफल यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं उसका एक नया अर्थ बन चुका है. और लोग सोचते हैं जो प्रतिफल है वो सिर्फ, ध्यान से सुनिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ लोग सोचते हैं इस दुनिया के संबंधित चीजें. The meaning of the word reward here in this verse has gotten a new meaning. In this new Christianity which we are witnessing around us, people think that when rewards come to you in response to your giving, they have to be pertaining to this life. Of material blessings only to this life. That is the mindset we have got
Sadly, my dear brothers and sisters, stay on with me and we will dig deeper into the Word of God. मेरे साथ बने रहिए, वचन के गहराइयों में आज हम जाएंगे। आजकल मसीह लोग सोचते हैं मैं देता हूं तो बदले में क्या मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगा। मैं देता हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आजकल मैं देता हूं तो बदले में क्या मिलेगा, अभी बाइक चला रहा हूं फिर कार मिलेगा। अभी मैं देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सोना खरीद पाऊंगा या घर खरीद पाऊंगा। हालेलुया। जो रिवॉर्ड, जो प्रतिफल यहां पर कहा गया है, उसकी अर्थ को बदल दिया है आजकल हम विश्वासियों ने, और उसका सही अर्थ समझना आज जरूरी है। It is important to understand the right meaning of the reward that God is talking about over here. Church, let me make it very clear with you. One thing, God is concerned about our lives. The God who created us is concerned about our life. That is why in Matthew chapter 6, the Lord says, don't worry. Don't worry what you will eat, what you will wear. इसलिए प्रभु मत्ती के 6 अध्याय में क्या कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6, चिंता ना करो क्योंकि आपके मांगने से पहले ही स्वर्गीय पिता जानते हैं आपको किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। चर्च, यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन टू थिंग्स बिफोर वी मूव अहेड। कल से आपको समझ लेना है 2 चीज। पहला जो है जरूरत एक तरफ रखिए और मांग एक तरफ रखिए। Let me tell it in English. One side you keep your needs, on the other side you keep your wants. Now there is a huge difference between your needs and your wants. Are you understanding this? There's a difference. Now, need is something by which, in the process which God has created you to be a human, you need that thing. For example, you need air to breathe. How much money have you paid to God for the air He has given you till now? Free. When Corona came, people were running for oxygen cylinders. Yes? Then we realized such an expensive thing God has given to us free. So that is a need. When whatever needs are there, your food, your clothing, your shelter, your good health, your spiritual health, your physical health, the health of your family, the health of your well-wish, your relatives. These are all needs. These come in this side category, okay? ये सारी जरूरतें हैं। आपकी जो आपका भोजन है, आपका जो पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, ये सारी चीजें क्या है, आपकी जरूरतें हैं। और प्रभु अपने वचन में साफ रीति से कहते हैं ये जरूरत आप मांगने से पहले ही पिता जानते हैं कि आपको चाहिए। हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से मत्ती के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पंछियों की उदाहरण को लेते हैं। The Lord takes the example of the birds. पंछियां कभी नहीं सोचते हैं, चिंता नहीं करते हैं आज कहां जाकर खाना लेना है, कहां मिलेगा, क्या करना है, कल क्या करना है, आज तो खा लिया, कल मिलेगा कि नहीं खाना, परसों मिलेगा कि नहीं, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम क्या करते हैं, आरडी, लाइफ इंश्योरेंस, हम लंबा सोचते हैं ना, कल क्या होगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप करिए, सेविंग करिए, ओके, अच्छी बात है। What I'm trying to tell you is, the birds are not filled with worry. पंछियां जो होते हैं चिंता में नहीं रहते, एक आशा में रहते हैं। उनको पता है कि जिसने हमें बनाया है वो हमारी जरूरत की चीजें भी हमें अपने समय पर जरूर देगा। हालेलुया। And Jesus says, you will also live like that. आपकी जरूरत की चीजें आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। हालेलुया। That is a statement of our Christian faith. Give us today our daily bread. प्रभु आज की रोटी हमें दे, जिसका मतलब दिन दिन की जरूरत की चीजें बिना कोई कमी के प्रभु आपको देंगे। और एक भी आपको मैं रहस्य बता दूं, दाऊद कहता है, Lord, you anoint my head with oil, my cup runneth over.
उसका मतलब क्या है? प्रभु तुम मुझे अभिषेकित करते हो तेल से और मेरा कटोरा जो है उबल रहा है। मतलब क्या है पता है आपको? आपकी जरूरत जो है ना, प्रभु आपको ऐसा देगा कि आप खाओगे, आपके परिवार वाले खाएंगे और जो भी आपके घर में है सब खाएंगे, फिर भी बच जाएगा। हालेलुया, फिर भी बच जाएगा और आप बाहर वालों को भी बुलाकर उनको भी आप प्रभु का प्रेम बांट सकते हैं। My cup runneth over. हालेलुया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। So much of blessing needs, okay? Stay with me because blessing has got a new meaning. Stay with me, I'll tell you what it is. In new fashionable Christianity, the word blessing is so good to the ears. It's got a new meaning. Hold on, I'll tell you what the Bible talks about it. What is the meaning that the Word of God has for it? I'm telling you about the needs God will give. Hallelujah. God will give. I'm 35 years old, church. I've never slept a day hungry. I've never slept a day naked. God gave me what I had to wear, what I had to eat. God gave me everything I need every hour. I'm grateful for it. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now let's talk about the other category, church. Now, the other category is called wants. या मांगे in Hindi you can say. दूसरा कैटेगरी, ये कैटेगरी जो है कभी खत्म नहीं होता है। ये कैटेगरी की क्षमता है, आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं अब बढ़ाते जा सकते हैं। हालेलुया। There is no limitation to this category of wants because human hearts desires have no limitations. Everybody agrees to that. इंसान के दिल के जो ख्वाहिश होते हैं उसका कोई सीमाएं नहीं होती। मैं अगर सोचूं, एक जमाना था 12 साल पहले जब मैंने नौकरी शुरू किया था, बहुत कम सैलरी थी लेकिन उसमें चल जाता था। उसके बाद थोड़ी तनख्वाह बढ़ी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ी। जैसा सैलरी बढ़ रहा है जरूरतें भी बढ़ रही है, फिर लग रहा है कि ये भी सैलरी भी कम नहीं है, मुझे कम हो रहा है, बस नहीं हो रहा है। Salary is increasing, the needs also increase, the wants also increasing, the level of luxury that I'm desiring for myself is slowly on an increasing level. मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, धीरे धीरे मेरा सोच भी बढ़ रहा है। अभी ज्यादा पैसे है ना तो थोड़ा महंगे कपड़े लेते हैं और थोड़े महंगे ये चीज लेते हैं। पहले नहीं ले सकता था, अभी पैसे आ रहे हैं, अभी लेते हैं। आपके पैसे आप लीजिए, मुझे तकलीफ नहीं है। मैं आपको ह्यूमन एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। I'm telling you about the human attitude. There is no limitation to the human mind when it comes to your wants. And I tell you a spiritual secret. Might sound very harsh, but I will have to tell it to you. God doesn't assure us to give us our wants. परमेश्वर कहीं पर भी अपने वचन में हमारी मांगों को देना के लिए वादा नहीं करता है। I mean the wants which come from our greed, जो हमारे लालच से जो हम मांगते हैं प्रभु वो देने की वादा नहीं करता। He will give you the best, a cup which is filled and overflowing. But if you ask him, Lord, I want to increase my stature, my prestige, and I want to keep on increasing. No, you're not called to be here on this earth forever. इस संसार में हमेशा रहने के लिए आपको बुलाया नहीं गया है। आप लोग समझ रहे हैं? आपको अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया गया है और ये संसार जो है एक प्रिपरेशन है, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है वहां जाने के लिए। एक यात्रा है, एक सफर है। जब आप सफर में जाते हैं, हम लोग गांव से आए थे तो अनजाने में हमारी लगेज बहुत हो गई, आने में बहुत दिक्कत हुई। लगेज बहुत था, बहुत दिक्कत हुई। मैम और सर ने हमारी मदद की, हम यहाँ पहुंचे। सही समय पर उदाहरण याद आया। जीवन के सफर में जब जा रहे हैं, आप इतने सारे लगेज को ले जाएंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप यहीं के यहीं रहेंगे, आगे नहीं जा सकते हैं। Tighten yourself because you're on a journey.
to eternity. Are you understanding? आप लोग समझ रहे हैं? हल्के में चलिए, जितना जरूरत है प्रभु वो दे रहा है ना, खुश रहिए। उससे अधिक भी प्रभु दे रहा है ना, दूसरों से बांटिए, आगे बढ़िए। हालेलुया। जब इस संसार के लिए भोग चीजों से हम ये चाहिए वो चाहिए हम लेकर बैठ जाते हैं, आवर लगेज बिकम्स मोर, हमारा जो है लगेज ज्यादा हो जाता है, फिर आपका सफर अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। So when you have this attitude about how God provides for us, and when we come back to giving, the reason I gave you this perspective of how we need to give out of gratitude and how we need to understand that God meets our needs. मैंने आप लोगों को पहले ये इसलिए समझा दिया कि हमें देना जो है हमारी दिल से देना है, पहली बात। दूसरा, हमारी जरूरतों को प्रभु पहले से ही पूरा कर देते हैं और उसमें हमें खुश रहना है। दूसरी बात, इतना अगर हम समझ लें तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि what is the attitude of giving that is going around, that is being preached in many places today. आजकल जो है किस तरीके के देने की स्वभाव को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उस चीज को आज हम लोग समझेंगे। और we read from Genesis chapter 25 verse 29. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew." And famished. हालेलुया। यहाँ पे देखो दो भाइयों की एक साथ बीच में होती हुई एक घटना को हम देखते हैं। We look at a small incident in the life of two brothers, Esau and Jacob. What is happening here? Esau was a hunter. He went for hunting. He got tired, so tired. He's come back home. Now he's so hungry and tired. He wants to eat something. And he sees his brother Jacob, who is a very good cook, has made a nice stew. And naturally, what will Esau do now? He asks his brother, "Give me some of that, so that I can eat. I'm hungry." यहाँ पे क्या हो रहा है? ईसौ जो है थक कर वो घर आया है और याकूब क्या कर रहा है? उसने कुछ पकवान को बनाया है ना, बनाया है उसने। तो ईसौ ने देखा वो भूखा है, थका हुआ है, तो इसलिए वो क्या कहेगा? क्या कर रहा है अपने भाई से? मुझे थोड़ा सा दे दो। इट्स अ वेरी नेचुरल सिचुएशन इन एनी फैमिली, राइट? कोई भी परिवार में हो सकता है। नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। एन एल्डर ब्रदर कम्स out from outside, tired. Younger brother has already prepared something wonderful, so nice. And younger brother says, "थोड़ा मुझे, give me something, थोड़ा दे दो, मैं भूखा." What should be the reaction of Jacob? Please tell me. Don't look into your Bibles. Just tell me the natural reaction. Okay, forget Jacob. What will the younger brother in that instance do? वो छोटा भाई क्या करना चाहिए? Give him the stew. Yeah. He'll say, "Go wash yourself. I'm serving for you. Come and eat." Yes? What should he say? "Go wash yourself. I'm serving for you." That is the right giving. Do you all agree, church? No doubt Jacob prepared it, but it is his elder brother. They have a relation. They are family. He should give it to him with love. Correct? But Jacob was a wonderful person. याकूब जो था बहुत अद्भुत व्यक्ति था। उसका नाम भी सही रखा गया था। याकूब मतलब फंसाने वाला। Jacob means deceiver. In every situation he wants to deceive. हर एक परिस्थिति में याकूब सोचता है मुझे क्या मिलेगा। हर एक परिस्थिति में याकूब क्या है ना, ये करूंगा तो मेरा फायदा क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है इसमें। इस व्यक्ति की सोच को आप जरा रुक कर समझिए और सोचिए। उसका बड़ा भाई थक कर घर आया है, प्रेम से जो उसने बनाया है वो देने के बजाय वो क्या कर रहा है आपको पता है? पढ़िए वचन में।
What is Jacob doing over here? Instead of serving his elder brother with love, he tells him this. Jacob replied, first sell me your birthright. Jacob ने यहाँ पे बिजनेस शुरू कर दिया, फैमिली बिजनेस, और बिजनेस इन द फैमिली, परिवार में छोटा सा धंधा। क्या कर रहा है? थक कर आया हो, ठीक है ना, ओके, मेरा पका हुआ चीज चाहिए, देता हूं। पहले एक शर्त है। शर्त क्या है? आपका जो बर्थ राइट है ना, बड़े बेटे होने का जो हक है, जिसे आपको जायदाद के ऊपर, पिता के जायदाद के ऊपर आपका बनता है हक, वो मुझे बेच दो। वाओ, इज दैट अ प्लेस फॉर अ ट्रांजैक्शन? क्या वो समय है, एक बिजनेस करने का समय है? बड़ा भाई थक के घर आया है, उसको खिलाओ, प्रेम से खिलाओ। A person who can do a business transaction even in this situation, आप समझ सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा रहेगा, उसकी सोच कैसी रहेगी। वो सोचता है सबसे मैं समझदार हूं, मैं सबसे समझदार हूं, मैं कभी किसी मौके को गवाता नहीं, हर मौके में अपने आप को फायदा करके लेता हूं। My dear brothers and sisters, with much sadness I'm telling you, today we can find many Jacobs in the church. When I say church, I'm not just saying our church. I'm talking about the whole universal church. आज कलीसिया जो है, मसीह की कलीसिया, वे उसके अंदर हम बहुत सारे याकूब को पा सकते हैं, जो हर पल में एक बिजनेस के समय को ढूंढ रहे हैं। मेरे को क्या मिलेगा? कलीसिया जाना है, मुझे क्या मिलेगा? अपना समय प्रभु को देना है, मुझे क्या मिलेगा? अपना टैलेंट प्रभु को देना है, मुझे क्या मिलेगा? अपना दान देना है प्रभु को, मुझे क्या मिलेगा? एटीट्यूड ऑफ जेकब्स एटीट्यूड। यहां पर उसी एटीट्यूड से उसने अपने भाई से कहा, मुझे अपना अधिकार दे दो। यूसुफ बेचारा क्या था? थका हुआ था, मरा हुआ था, मरने ही वाला था। लिखा है वचन में, इतना थका हुआ था, इतना भूखा था कि वो कमजोर हो गया था। उसने कहा, मैं तो जैसे मरने वाला हूं, मुझे ये अधिकार लेकर मुझे क्या करना है, ले लो। एक बात से उसने क्या कर दिया? अपने बर्थ राइट, अपने अधिकार को अपने डिसीविंग ब्रदर को भेज दिया। याकूब ने आराम से उसको ले लिया। उसके बाद उसने अपना ऑफर, अपना जो बनाया हुआ था, उसके भाई को दिया। हालेलुया। Now let's look at this same person, what he did with his elder brother. And now this same person in another setting has an encounter with a different person. यही व्यक्ति याकूब जो है, और उसके जीवन के आगे की घड़ी में एक और परिस्थिति में एक और व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। और देखो याकूब उस जगह पर क्या करते हैं। जैसी उसकी सोच है वैसे ही तो करेगा, जैसी उसकी सोच है वैसे ही करेगा। मेरे साथ आप खोलिए जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 20, उत्पत्ति का 28वां अध्याय और 20वां वचन। 28वां अध्याय और 20वां वचन। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब एक कदम आगे बढ़कर उसकी मां रेबेका की बात को भी सुनकर उसने क्या किया है। यह घटना से पहले की घटना है, इसको समझना है तो वो समझना है। There is a prior incident to this incident. Jacob has deceitfully a second time taken away the blessing of Esau. Esau का the blessing that comes to Esau from Isaac. Isaac से जो ईसो को आशीर्वाद आता है बड़े बेटे होने के नाते, फंसा कर याकूब ने चुरा लिया उसको। चुरा कर वो क्या कर रहा है, अभी क्योंकि मेरा भाई मुझे मार देगा, डर से अपने प्राण को बचाकर उसकी माँ की जो बात है कि मेरे भाई लाबान के घर चला जा, वो जा रहा है। जाते समय वो भाग रहा है अपने घर से, अपने भाई से अपने आप को बचाकर भाग रहा है। रनिंग अवे फ्रॉम हिज ब्रदर राइट नाउ। और एक जगह वो क्या करता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, वो लेट जाता है। हालेलुया।
On one side, Jacob is is a man with this kind of an attitude. To see profit in the simple things of life. Even in sharing his meal with his own brother, he wants to see how much profit he can make. This kind of a person. But I tell you, church, on the other hand, there was a God who was a God of Jacob. Hallelujah. On the other hand, today we sang the song, Yakub ka Parmeshwar hamare sang sang hai. God associated himself to be called as the God of Jacob because something transforming was to happen in Jacob's life. Hallelujah. याकूब जैसा अभी था, प्रभु की नजर उस पर थी. God was looking at Jacob and God had a great plan for Jacob. And the plan was from Jacob, God wanted to make him Israel. Hallelujah. Jacob से, याकूब से, जिसका अर्थ है फंसाने वाला, परमेश्वर याकूब को इस्राएल बनाना चाहता था. Hallelujah. That transformative plan of God, which began with the call of Abraham in Genesis chapter 12, was continuing through Isaac, and after Isaac, it was to be inherited by Jacob. Are you understanding? प्रभु की आशीष का जो वादा है अब्राहम से शुरू हुआ, फिर आइजैक में गया, आइजैक से होकर के वो याकूब से आगे बढ़ना था. प्रभु का वो प्लान ऊपर प्लान प्रोग्रेस है. God's plan is working still. But down here, you look deep closely, Jacob is a man of a different attitude. A different attitude. और याकूब यहाँ पर क्या करता है? वो सो जाता है. प्रभु का दर्शन उसको मिलता है. A wonderful vision. He sees the vision. And then he knows God is here. He calls the place as Bethel. Bethel. Everything is so wonderful. God has a plan for him. Even though he has got this deceiving nature, God has a plan for him. Isn't it wonderful? The blessing of Abraham, the blessing of Isaac is on Jacob now. Isn't it wonderful? So beautiful. He had a vision from God. Wonderful. But hold it there. सब कुछ अच्छा चल रहा है. प्रभु की आशीष अब्राहम इसहाक की आशीष याकूब पर है. उसने दर्शन को पाया. सब अच्छा चल रहा है. लेकिन आप याकूब के हृदय के अंदर देखें तो उसका चरित्र अभी भी वैसा ही है. उसका चरित्र अभी भी वैसा है. और यहां पर देखो वो क्या कर रहा है. परमेश्वर से बात कर रहा है. और पढ़िए 28वां अध्याय 20वां वचन, चैप्टर 28 verse 20. Then Jacob made a vow saying, याकूब एक जो है शपथ को ले रहा है. एक वाव. किसके साथ? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे. किसके साथ? परमेश्वर के साथ. जिस परमेश्वर ने अभी याकूब को दर्शन दिया है. Jacob is making a vow with God. And what does he say? If God will be with me and watch over me on the journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's house. Hold it there. बस इतना पढ़ते हैं. क्या कहता है? अगर. This word is very important. यदि, if. Look at Jacob for a while. God gave him a vision. God gave him a vision. And now he's making a vow to God. He's not bowing before the Lord. He says he's not praying to the Lord. He says, Lord, you be with me. I trust in you, Lord. I know that you will take me to my uncle's house. I know that you are a God of Abraham, my forefather, and Isaac. I know that you bless them. You will bless me too. I believe in you. He's not praying like that. याकूब ऐसा नहीं प्रार्थना कर रहा है. प्रभु मुझे पता है आप मुझे ले जाएंगे, आप मुझे सुरक्षित वापस लाएंगे. आप मेरे पूर्वज अब्राहम और आइजक, मेरे पिता आइजक के परमेश्वर है. आपने उनको आशीर्वाद किया, मुझे भी देंगे. मुझे आप पर भरोसा है, आप यकीनन देंगे मुझे. याकूब ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा है. याकूब ने एक बड़ी शब्द लगा दी प्रभु के सामने. इफ, यदि, अगर, if God blesses me and gives me this. He has a very big list over there. You can read. He gives me all this. Then
Now Jacob wants to do God a very big favor. अभी याकूब जो है बदले में अगर प्रभु ने मुझे ये दिया, ये सब कुछ दिया, तो मैं प्रभु को बहुत बड़ी चीज दूंगा। याकूब कहता है उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो प्रभु को वापस देना चाहता है। किसके बदले? आशीष के बदले प्रभु को देना चाहता है। क्या देना चाहता है? He's making a proper contract with God, a proper deal, a proper business deal with God. And he tells the Lord, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. सब कुछ जो तुम मुझे दोगे प्रभु, उसमें से, don't worry Lord, I'll give you your share. आपका जो मनता है मैं आपको देता हूं, आप पहले मुझे आशीष दो। ये जो मैंने लिस्ट आपके सामने रखा है उसको पूरा करो। ये लिस्ट पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्या करूंगा? आपको दशमांश दूंगा। I am understanding here the attitude of Jacob. क्या आप याकूब के जीवन में जाकर, उसके हृदय के अंदर जाकर उसकी सोच को समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर से डीलिंग कर रहा है। He is doing a dealing with God. If you give me all this, then I will give you a tenth. My dear brothers and sisters, today many of the Christians are giving Jacob's giving to the Lord. आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग जैसा याकूब ने प्रभु को देने का वादा किया, वैसा प्रभु को देना पसंद करते हैं। हालेलुया। मुझे आज नौकरी मिली तो मैं दशमांश प्रभु को दूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा प्रमोशन मिल जाए। अगर प्रभु से कहूंगा प्रभु आप मुझे प्रमोशन दो, क्योंकि आप नहीं देंगे ना तो मेरा दशमांश उतना ही रहेगा, आप देंगे तो मैं ज्यादा आपको दे पाऊंगा। तो आपको ज्यादा दशमांश चाहिए तो पहले मुझे प्रमोशन दो। बिजनेस विद गॉड, ये देना हो गया है आजकल। आई कैन नॉट गेट क्लियरर देन दिस, कैन आई? इससे साफ रीति से मैं आपको बता नहीं सकता हूं। As Jacob made a treaty with God, church, I want to tell you, God does not bother with a mere human treaty over here, rather a silly treaty. परमेश्वर जो है वो एक छोटी सी, ये जो याकूब का जो ये छोटी सी ट्रीटी है, उससे परमेश्वर ने उसको केयर नहीं किया। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, लेकिन उसके लिए उसको 21 years वेट करना पड़ा। आपको पता है Jacob had to wait 21 years. The attitude of deceiving which he had, which he played with everybody, his own uncle Laban played on him. जिस तरीके से वो सबको फंसाना चाहता था, यहां तक कि परमेश्वर के पास भी जाकर परमेश्वर को भी वो एक डील सेट करना चाहता था। जब लाबान के घर गया तो लाबान का डील उसको महंगा पड़ गया। लाबान के पास रहकर 21 साल परमेश्वर ने उसको नम्र होना सिखाया, सही देना क्या होता है उसको सिखाया। आशीष जब पाते हैं, आशीष जब अनुभव करते हैं, आभारी दिल से देना क्या होता है, परमेश्वर ने याकूब को सिखाया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं जब 21 साल के बाद जब याकूब को जो है, याकूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि उसने डील किया था प्रभु से, इसलिए नहीं। एक बार भी हम नहीं पढ़ते या कहां पर याकूब ने अपने डील को ही निभाया, प्रभु को दशमांश वापस दिया। एक बार भी हम नहीं पढ़ते। आगे आप पढ़िए उत्पत्ति में, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यह जरूर मिलेगा कि परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम से वादा किया था, इसहाक से वादा किया था, वही वादे को उसने, बिकॉज गॉड इज अ कवेनेंट कीपिंग गॉड, वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। लाबान के हाथ में परमेश्वर ने याकूब के चरित्र को भी बदलवाया। लाबान के पास रखकर, देयर वाज अ स्कूल, 21 years ट्रेनिंग पीरियड। वो नम्र भी हो गया, सच्ची आशीष को भी उसने पाया। उसके बाद जब लाबान के घर से आ रहा था, अकेले में दोबारा उसने प्रभु को देखा, प्रभु से संघर्ष कर रहा है।
He's fighting with God. Now he wants the real blessing, church. The second time he says, I want the real blessing. And why? Do you know why Jacob was fighting with God? Because Jacob had realized, I got everything I wished a human should get. That is sufficient for him. I got wealth, I got family, I got children, I got cattle, I got car, I got everything. But in spite of all these things, if I don't have my God with me, everything is a waste. When his brother Esau was coming with 400 men, he thought he's coming to attack me. He got scared. वो डर गया. जब ईसो आ रहा है सुना, अभी उसको लगा ये मेरे धन दौलत संपत्ति ये मुझे बचाएगा. ईसो के पास कौन बचाएगा मुझे? मेरा परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है. मेरा परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया. So he stays back alone and he talks to God. God comes to him and there is a little bit of a fight going on. Jacob doesn't want to let go of God. He says, I need your blessing. And now when he says blessing, he has a new meaning in it. What is that new meaning? I need your presence with me, oh God. I thought blessing was material things. I received everything. I made a wrong deal with you the last time. I want to correct it right now. Jacob परमेश्वर से कह रहा है, पिछली बार प्रभु मैंने गलत डील कर दिया आपसे. अभी मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं. अभी आपने मुझे अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष मुझ पर दिखाई, मुझे आपने सब कुछ दिया, लेकिन मैंने ये एहसास मुझे हो गया है, ये एहसास कि मुझे अभी ये सबसे कुछ फायदा नहीं होना है. मुझे आप चाहिए. I need your presence, Lord. I need you in my life. He fights with God. I will not let go of you until you bless me with your presence. God is amazed at Jacob's transformed character. And God says, you shall be called Israel. Not Jacob anymore. Israel. चरित्र बदल गया, उसके साथ नाम भी बदल गया. Church, we need to turn from being Jacob into Israel. हम सबको जो है याकूब से इज़राइल बनना है. दुख की बात है, आजकल जो है हम सब बहुत आजकल प्रचारक क्या कर रहे हैं, लोगों को उत्साह कर रहे हैं देने के लिए. देना बुरी नहीं है, लेकिन लोगों से कहते हैं याकूब की तरह दो, इज़राइल की तरह नहीं. आप देंगे तो प्रभु आपको देगा, मतलब आप नहीं देंगे तो प्रभु नहीं देगा. कंडीशनल ब्लेसिंग. This is the problem, church, because your blessing is not starting from gratitude. Your giving, forgive me, your giving is not starting from gratitude. आपका देना जो है आभारी हृदय से शुरू नहीं हो रहा है. आपका देना जो है कहां से शुरू हो रहा है? एक ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस डील सेट करके शुरू हो रहा है परमेश्वर के साथ. ऐसे विश्वासी जो होते हैं उनका जीवन भर बिजनेस डील ही चलते रहता है प्रभु के साथ. दुख की बात है. This is known as the prosperity gospel, which started from America and is now all around the world. ये जो prosperity gospel है, ये अमेरिका में शुरू हुआ और अभी सारे संसार में फैल गया है. Every day, everywhere, prosperity preachers are standing on the pulpit, encouraging people to give. Why? With what attitude? The attitude of Matthew chapter 6? No. The attitude of Jacob when he made a deal with God. Are you understanding this? I want to give you an illustration. The loop of prosperity gospel. Look here and understand. It starts from here. You think to yourself, I need more material blessings. आप अपने आप से सोचते हैं मुझे आशीष चाहिए, संसार की मुझे चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, whatever आप सोचते हैं. उसके बाद आप प्रभु के वचन के पास जाते हैं. वहां पर I take some verses out of context. थोड़े प्रभु के वचन आपको ये prosperity preachers आपके हाथ में दे देते हैं. For example, Malachi chapter 3 verse 10. Out of context मतलब है मलाकी 3:10 किसको बोला जा रहा है, कब बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है. कॉन्टेक्स्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है. Just pluck it out of context and then आपको क्या करना है, आपको उसको confess करते रहना है. This is the prosperity loop, church. I'm educating you so that you know what it is. You are aware spiritually.
And then you start giving your offering or 10% faithfully. Giving is not bad, as long as it conforms to Matthew chapter 6, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. If any other intention, it becomes this. You keep giving and giving because you started from there and need more material blessings. Your giving started from there, not from gratitude. And then you might receive some blessings. You might receive. I'm not saying that you won't. You will receive. Sometimes it is God who has mercy on you and gives you what you need. Sometimes you might get something very big. You might be very happy about it. But have you paused and realized from where it is coming? Because I want to tell you, if you go to Matthew chapter 4 verse 8, we find Jesus and Satan having a conversation there. And Satan shows Jesus all the things in the world. मत्ती का 4:8 में शैतान क्या करता है? संसार के हर एक चीज को दिखाता है और एक बहुत बड़ी दावे को करता है. कहता है all this belongs to me and I give it to whomever I please. कौन कह रहा है ये? शैतान. वचन में देखिए, यीशु को दिखा रहा है सारी दुनिया की चीजें. कहता है ये सब मेरा है और मैं जो चाहता हूं, जिसको मैं चाहता हूं मैं उसको दे सकता हूं. शैतान प्रभु से कह रहा है अगर तुम मेरी उपासना करो. मतलब शैतान की उपासना करेंगे तो शैतान कहता है सब मिलेगा. शैतान सामने आकर खड़े नहीं हो जाता है मैं शैतान हूं मेरी उपासना करो. शैतान वेश बदल कर आता है और आज जो वेश शैतान ने पहना है उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल. आप समझ रहे हैं? आज जो वेश पहनकर शैतान कलीसियाओं में घुस चुका है उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल चर्च. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. मुझे और चीजें चाहिए 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 चाहिए. एंड द लूप गोज ऑन. यू विल गेट इट बट यू डोंट नो द सोर्स. कहां से मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? Check the source. If you're getting from the wrong source, it's of no use. Matthew chapter 6 verse 24. Check the source. उसके बाद में आपको मिल जाता है इसलिए आपको लगता है मैंने ये किया इसलिए मुझे मिला. I did this, that's why I got this. So the loop continues. The loop continues. उसका रुकता नहीं है, वो चलते रहता है. पहले मुझे चाहिए, मैंने वचन को मैंने दुरुपयोग किया, वचन को मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया, मैंने दशमांश याकूब की तरह दिया और उसके बाद मुझे मिले. कहां से मिले? मैं खुश हूं, फिर मुझे और चाहिए. लूप कंटिन्यूस. चर्च, इट्स टाइम फॉर अस टू वेक अप. कलीसिया जाग जाइए, प्रभु को दीजिए लेकिन आभारी दिल से दीजिए. लोभ से मत दीजिए. मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये सोचकर मत दीजिए. कभी आपने सोचा है, कभी आपने ये सोचकर देखा है मुझे मिले या ना मिले, मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं दूंगा, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे अभी तक दिया है वो ऋण चुकाने के लिए ये जिंदगी काफी नहीं है. ऑलरेडी जो मिला है मुझे, जो उद्धार मिला है, जो टैलेंट मुझे मिले हैं, जो जीवन मिला है, जो अच्छी सेहत मिली है, जो भी अभी तक मिला है उसका ऋण जो है, उधार जो है वो चुकाने के लिए ये जिंदगी काफी नहीं है. तो आगे कुछ मिले या ना मिले कम से कम ये ऋण तो पहले चुका दूं प्रभु को. गिव आउट ऑफ योर इमेंस ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड. जब आप ऐसे गहरे आभारी दिल से प्रभु को देते हैं तो क्या हो जाता है? You get the right attitude of giving. Hallelujah. You get the right attitude of giving. Your giving comes in line with how God wants it to be. आपका जो देना होता है वो सही उद्देश्य में आ जाता है. Hallelujah. Because when you give,
I want to tell you, church, God's eyes are not on your giving. God's eyes are on your heart at the moment of your giving. जब आप देते हैं कुछ भी हो, किसी भाई बहन को या कलीसिया में किसी सेवकाई को, किसी पासवान को, कहीं पर भी आप देते हैं, तो आपका जो दिया जा रहा है उस पर प्रभु की नजर नहीं पड़ती है। क्योंकि जो विधवा स्त्री थी, गरीब, उसने जो कम डाला था, प्रभु की नजर उस पे क्यों पड़ी? क्योंकि प्रभु वहां बैठकर देख रहे थे कि जो जो दान डाल रहा था, उनके दान को भी और उससे गहरा प्रभु उनके हृदय की परिस्थिति को। प्रभु कहते हैं जिन्होंने ज्यादा दिया, उन्होंने उनके पास जो ज्यादा है उसमें से दिया। मतलब प्रभु को क्या कर रहे हैं? है मेरे पास, थोड़ा अपने में चलेगा, नो प्रॉब्लम, बहुत है, थोड़ा एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। प्रभु जो कुछ भी मेरा है, सब कुछ आपका है। There is a difference in this giving and that giving. Hallelujah. Church, I want you to understand that if we give like this, what is going to happen? How our heart condition will be? Can you change this like this? I don't know. Yeah. In the prosperity gospel, there is no silent giving. It violates Matthew 6:3-4. We have no practice in our church to write your name on the envelope of your tithing. Actually, we don't take tithes. I've made it very clear. You give out of what you decide before God. You and God, what you decide, you give. Okay? And we don't have practice to write your name on your envelope. Okay? Because when your hand prepares for what you are going to give, the Lord knows it. And when your hand comes to the offering bag, the Lord knows it. What you are giving out of your difficult times, even though you are going through a struggling situation, yet you are giving by faith, the Lord knows it. The Lord sees it. So you give silently, because knowing that my God is seeing and He will meet all my needs. Hallelujah. So in the prosperity gospel, many preachers, they make it a very important point. Write your name on your envelope. We need to know whether you are giving or not. Who said so? Where is it written? Can you show me? You will not find it. So in the prosperity gospel, there is no silent giving. Second thing, it stimulates spiritual pride. When you go according to the prosperity gospel, like the Pharisee who was standing next to the tax collector and was praying, you think in your heart, I give my tithes. It stimulates pride. It strikes a business deal with God, like Jacob did. And there is no objective giving. Objective giving means there is a need, I see the need, and I can, if God has given me the means, I fulfill the need. Objective giving मतलब एक जरूरत है, किसी भाई या बहन के जीवन में कुछ कमी है, जरूरत है, पवित्र आत्मा ने आपको दिखाया और आपके पास इस समय है, आप दे सकते हैं, देने की स्थिति में आप है, आपका कटोरा भर कर उमड़ रहा है, जो ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग आपने पाया है, और उस समय आप क्या करते हैं? आप जाकर उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में उस मदद को देते हैं। आपका मकसद यही रहता है कि मेरा भाई बहन जरूरत में, मैंने दिया, बस, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, बस मेरा भाई बहन जरूरत में है, मैंने दिया, प्रभु ने देखा, बात खत्म, बात वही की वही खत्म। प्रभु ने देखा, बात शुरू होगी कब पता है? जब आप प्रभु के सामने जाएंगे। You will receive an eternal reward because of the treasure you are storing up in heaven. Hallelujah. मत्ती में सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु कहते हैं, do not store up for yourselves treasure on this earth. संसार में धन इकट्ठा मत करो। कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में। कैसे इकट्ठा करेंगे स्वर्ग में? स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्टिव गिविंग करते हैं, आपने किस जरूरत को देखा, आपको प्रभु ने दिया है, आपने दिया, चुपचाप बस खत्म। प्रभु जानता है, आप जानते हैं, जिसने पाया है वो जानता है। Hallelujah. And you go spiritually, the words of Jesus will fulfill in our life. He, the Father who sees in secret, will reward you. Hallelujah.
And then in the prosperity gospel, there is no sacrificial giving. मतलब जेकब माइंडसेट, मुझे मिलेगा तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं. If there is a condition laid before me that I will get a double blessing, then I will give. Otherwise, I will not give. So there is no sacrificial giving. That is why this prosperity gospel is dangerous, church. Will you show the other slide? Yes. Answer this question. Can we give without any expectations of material blessings, looking unto eternal rewards? क्या हम इस संसार की चीजों की अपेक्षा ना करते हुए अनंतकाल की चीजों की ओर देखकर हम दे सकते हैं कि नहीं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना जरूरी है. हालेलुया, हालेलुया. The right attitude of giving. I give to the Lord because He has given His all for me. I finished with my time, so I want you to write down the references that I'm giving you right now. Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Because He gave His all for us, we give our all to Him. Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Romans chapter 12, verse 13. Paul encourages us to practice hospitality. Romans chapter 12, रोमियो की पत्रिका 12वां अध्याय 13वां वचन, पौलुस हमसे कहता है जो धर्मी जन है, प्रभु के जन है, उनके साथ आप मेल मिलाप में रहो, उनकी जरूरतों को अपनी समझो और एक दूसरे को मदद करते रहो, पौलुस कहते हैं. And then 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, we read like this. The church in Jerusalem was very poor. यरूशलेम की कलीसिया गरीब हो गई थी, उनके पास कुछ नहीं था. तो पौलुस क्या करते थे? He started a charity fund. पौलुस ने क्या किया? चैरिटी फंड. मतलब जिस कलीसिया में वो जाता था वहां पर उनसे कहता था मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, वहां जो भाई बहन है वे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, आप क्या करो, जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत उनको दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा. So Paul was collecting from every church. And then now here in 2 Corinthians chapter 8 he talks about the Macedonian church. Macedonian कलीसिया के बारे में वो बताते हैं जो खुद ही गरीब कलीसिया थी. Macedonian church was a poor church. They had very little. But when Paul goes there and says the brothers in Jerusalem are suffering, what they do, with the little that they had, sacrificially they give to Paul and say, हम कैसे भी संभाल लेंगे, प्रभु हमारी जरूरतें पूरा करेंगे, आप पहले हमारे भाई यरूशलेम में जो बहन जो है उन तक आपकी मदद पहुंचाओ, ले लो. उनकी कमी में से उन्होंने दिया. कौन कहता है? पौलुस कहता है. From within their poverty, their generosity became rich, Paul says. And they gave. Hallelujah. That is the right attitude of objectional giving. क्योंकि उस समय में उनके नजर के सामने एक ही था, हम गरीब है, हमारे पास नहीं, या मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सब नहीं था. यही था कि हमारे भाई बहन वहां यरूशलेम में गरीब है, उनको मदद पहुंचा. बस उन्होंने अपने गरीबी में से निकाल कर दे दिया. Hallelujah. Objectively giving, sacrificially giving. Hallelujah. And then when I give, I don't place any condition before God. I give out of gratitude. Matthew chapter 7 verse 7 to 11. Matthew chapter 7 verse 7 to 11. We give like a child trusts their father. Jesus says, you being evil know how to give good gifts to your children. How much more will Heavenly Father give you, the Lord says. When you give like a childlike faith. I'm giving to my Father's kingdom. My Father knows my needs. When Sean is eating something, I ask. He breaks it and he gives it to me. I bought that biscuit for him. But when I ask, he breaks a piece and he gives it to me. Why? Because I'm his father. I ask and he's giving freely. He doesn't think if I give this small piece of biscuit to my dad, will he going to return me a big packet? Am I doing a business? First I give a small piece to get a big packet. No.
because I'm his dad, he's my child. He knows that I don't have to ask. My father keeps giving me what I need. You see the relation, child and father? The same relation we have with God. That is how we need to give, in that relation. Hallelujah. And then Luke chapter 6 verse 32 to 35. Luke chapter 6, I give freely without ulterior motives. मैं जो है अंदरूनी जो है कोई विचार बिना रखे, कोई कंडीशन के बगैर मैं फ्रीली प्रभु को देता हूँ. And finally, I give because I want to store treasure in heaven. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. I give because I want to store up treasure in heaven. मैं देता हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग में मुझे धन बटोरना है. स्वर्ग में धन बटोरना है. Hallelujah. Praise the Lord. Church, today we have looked into the Word of God to see the right attitude of giving. And in contrast, I've made it very clear to you what is the wrong attitude of giving. That is the prosperity gospel. Or you can go back to the life of Jacob and you can understand it. Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. देना बहुत जरूरी है. देना बहुत जरूरी है. यस, देना बहुत जरूरी है. जब हम देंगे, हमारी जो जरूरत है, प्रभु कहता है देखो ऐसा बढ़ जाएगा. Your needs will be met like this. Good measure, pressed down and shaken together. And the second picture you can see over here is the cup overflowing. If you give out of your gratitude, your life will be like this. Hallelujah. जब आप सही तरीके से देते हैं, आपका जीवन ऐसा रहेगा. Hallelujah. So let's stop all transactions with God. Business transactions. No. God is not a person we do business transactions. God is a person we trust. We depend upon. We love. We adore. We worship. And we obey. Hallelujah. Shall we pray, church? Fill your hearts with gratitude. Remember how God has been gracious to you. याद कीजिए वो पल जो प्रभु ने आपको अनुग्रह दिखाया. प्रभु ने जो है आपको सब कुछ दिया है आज. हर एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए. And fill your heart with so much gratitude that the next time you are prompted to give something, it could be anything. When you're prompted by the Holy Spirit to give it out of your gratitude, knowing that the Father who sees in secret will reward you openly, will reward you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you, Lord, for everything. Jesus, I'm so grateful to you for everything. Because those who look to you are radiant. And their faces are never covered with shame, O God. The young lions may lack and suffer hunger. But the word says, Lord, the righteous shall never lack anything. Jesus, we thank you for your promises. Thank you, Lord, that even till today you have been with us, providing for us. You have been our Jehovah Jireh. You have been with us, O God. And thank you for everything. Teach us to have the right attitude in our giving, O God, so that our giving becomes more meaningful. Our giving becomes, Lord, more spiritually insightful. Our giving becomes more rich in your eyes, Lord, so that we can store up treasures for us in heaven, as you said, O God. प्रभु सहायता करे कि हम दें इस तरीके से, हमारे दिल से, कि हमारा देना जो है वह आपकी नजरों में पिता एक अच्छे प्रभु भेंट की तरह हो, एक सुगंध भेंट की तरह हो प्रभु, ताकि हमारे जो भी हमने पाए हैं उसमें से हम आपको दे पिता, हमारी दिल से दे पिता.
और ये विश्वास से दे कि मेरा पिता मेरा ख्याल करता है, मेरा पिता मेरे हर जरूरत को पूरा करता है और अब तक किया है, इसीलिए मैं दे रहा हूं। Hallelujah. Praise you, Jesus. And I want to encourage you, church. When you help a brother or sister, do it secretly. And the Lord who sees in secret will reward you. You will not lose your reward. You will get it from the Lord. Don't look for the reward from men. It's useless. God will give you. Wait for it. Keep being generous. Keep being generous. Because as much as the river flows, it is filled with fresh water. If you keep giving, you're like a fresh river flowing and flowing and flowing and flowing. You retain your freshness in your generosity. As you give, you receive more from the Lord when you give with the right attitude. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Father, we give you all the glory and the honor. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। आपके वचनों से आपने हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। इस समय में प्रभु आपने हमें प्रभु आपके वचनों से सिखाया है कि हम प्रभु आपको खुले मन से, स्वेच्छ दिल से, आभारी दिल से, जो भी आपने हमें अभी तक दिया है, उद्धार, अनुग्रह, प्रेम, संसार के जो जरूरत की चीजें, उस सब के बदले में आभारी दिल से पिता हमारा समय, हमारा धन, हमारी प्रभु शक्ति, प्रभु हमारा सब कुछ आपको देने के लिए हमें सहायता करे प्रभु। पिता परमेश्वर याकूब की तरह नहीं पिता, लेकिन इज़राइल की तरह बनने के लिए सहायता करे प्रभु। हमारे दिल से हम दे सके, ऐसा हमें सिखाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इस वचन को हम याद रखकर हमारे जीवन के हर दिन के जीवन में हमें करने के लिए हमें सहायता करें पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे हृदय से बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आप हमें बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें नए सिरे से बदल रहे हैं, क्योंकि आपका आना निकट है और आप चाहते हैं कि हम आपके स्वरूप को पाकर हम तैयार रहें पिता परमेश्वर। इसीलिए आप हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं, हमें बदल रहे हैं, हमें आपके स्वर्ग के अनंत काल के राज्य के लिए आप हमें सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति, महिमा, आदर प्रभु यीशु आपको देते हैं। हमारा जीवन, हमारा सब कुछ आपको सौंप देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ आपका है प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।